Now, talking about Jawaharlal Nehru is a very, very special pleasure for me. I've been associated with this university for a number of years, and I've been associated with things which Jawaharlal Nehru did, several things, on many occasions. I was planning actually to talk about, expand on several human interactions which I had with Nehru, छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र तक थोड़े, और उससे कैसा कमाल का इंसान था, वो चमक के निकला मेरे लिए, भूलता नहीं है। मैं हिंदी बोल लूँ कभी कभी, और बाद में there are things like, for example, remarkable things which he originated. The non-aligned movement which was started for the non-independent countries, essentially by Jawaharlal Nehru along with some others, essentially for the first time gave an element of freedom to several hundred people, countries of a choice of freedom who didn't have freedom. And of course various things in science and technology. As far as this is a university, Vice Chancellor Sahab, तो साइंटिफिक टेम्पर की हम बहुत बात करते हैं, but one of the things which I've heard Jawaharlal say, and to which I completely agree, that a lot of things we talk about in science and technology, in many things, we don't understand. अच्छे से पहचानते नहीं. True deep understanding, what he called, was scientific temper, not necessarily using a whole lot of science. And I think this is not appreciated very well. And there's lack of understanding in every field we teach and touch, particularly when we make all kinds of disciplines, cut from another discipline, we get very peculiar kind of experts, but we don't develop a normal, broad understanding which ought to be developed. And I think he kept on talking about understanding. अच्छा, उसको छोड़िए, पहले मैं कहानियाँ सुनाऊंगा थोड़ी आपको. I met Jawaharlal Nehru when I was a student for the first time in 1945. He had been released from jail after the 42 movement, and he came to Lahore. I was a student in Lahore, and we were having a students' camp on the banks of Ravi. अरे रावी बोल दिया मैंने, तो रावी के किनारे थे हम वहाँ. तो we went to the railway station to receive him. We received him. मेरा कुर्ता वर्ता फट गया भीड़ भाड़ में, मैं नज़दीक नहीं पहुँचा उनके. When he was taken to a rostrum in the middle of the railway, outside the railway station, and there was a large crowd, and there were some friends of his sitting way out there, Abdul Ghaffar Khan, and Nehru was beckoning to him, "आ जाइए, वो कहाँ से आए यार, भीड़ से निकल के कैसे आए?" And Nehru used to carry a little stick. हाँ बेटन, हाँ वो लेके वो घूमते थे, तो लेके उतर गए, गुम हो गए, दिख ही नहीं रहे. And after a while I found him, and he was dragging Khan Sahib back to the river. And I was very impressed with them. But the main point of going to meet him was to appoint him, to invite him to our camp and to talk to us. And we invited him and he came. तो हम तंबू में बैठे थे, मैं बोलूँ हिंदी, तंबू में बैठे थे, तो हमारे सेक्रेटरी ने तैयार की थी एक बड़ी अच्छी सी स्पीच. तो खड़ा हुआ बोलने के लिए, यहाँ खड़ा हुआ, ये एक कुर्सी थी उसके साथ बैठने की, तो बोलने लगा. तो हम घबरा रहा था क्या क्या कहेगा उसके लिए. उसने बोला, ऐ हिंदुस्तान के मायानाथ सपूत, यहाँ तक पहुंचा. जवाहरलाल उठ गया,
बकवास बंद कर, इधर बैठ जा। मैं ऐसी बकवास सुनने के लिए नहीं आया हूं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। यहाँ बैठ जा, इधर आ जा, इधर आ, पास बैठा के हाथ गले में डाल के, हाँ चलो अब बातें करते हैं। दैट वॉज जवाहरलाल नेहरू, always completely impatient with ridiculous ceremonies and so on. And that impressed us a lot. And he said, we are soldiers of freedom, we have to talk freedom. We are not only talk like this, which has no meaning. And I was very struck. कुछ दिनों बाद I went to, this was the time, incidentally I'm talking about 45 onwards, independence had descended in India. Also lot of unsettled social conditions. मार काट चलती थी यहाँ पाकिस्तान में भी उन दिनों पे। यार शर्म आती है जिस तरह से the way we behaved with each other. So Nehru was going to talk across Shadra, give a lecture in the evening, and I said I must go and listen to him. I went there, पहुंच गया, बस से देर हो गई, completely कोई गड़बड़ी थी। Anyway, जवाहरलाल ने बात करनी थी तो रुकना तो था। So we were there, रात के 11, 12, 1 बज गए। नेहरू जी ने बोला नहीं, फिर बोला उन्होंने, और मेरे को फिक्र हुआ कि क्या करूं, वापस कैसे जाएंगे, बस मिलेगी नहीं, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और फिक्र था कि मेरी मदर फिक्र करेगी, इस मार काट के ज़माने में मैं कहाँ घूम रहा हूँ इस वक्त 1 बजे तक, तो बोला क्या होगा। So I was very worried. And they were worried also at home. My father was not in town, and my younger brother, 3 years younger to me, तो मैं कोई 16-17 का, वो 14 साल का होगा। उसे कहा, ओमी ओमी जाके पता तो कर, खत्म हुआ कि नहीं लेक्चर, तेरा भाई आया नहीं, क्या करें। ओमी ने सोचा कि करें, उसको धकेल दिया बाहर, पता करो। रात के 1 बजे क्या करे ओमी बेचारा। साइकिल पे चढ़ा, वो चढ़ के निकलने लगा, इंडिया गेट के पास पहुंचा। उन दिनों बड़े बड़े पोस्ट बॉक्स होते थे, वो लाल रंग के, तो जेब में हाथ डाला, उसमें एक चवन्नी निकली उसके जेब में से। तो और उसको ध्यान आया कि अगर पता करना है कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्पीच कब खत्म की होगी, नेहरू के सिवा कौन जानेगा, किसी को नहीं पता होगा। तो वो चवन्नी निकाल के घूमता रहा, टेलीफोन मिला, वहां से प्राइम मिनिस्टर के घर को उसने कॉल किया। तो उधर से आवाज आई, हेलो। तो ये बोलते हैं, ये पंडित जी का घर है। अरे हाँ पंडित जी का घर है, मैं जवाहरलाल बोल रहा हूँ, बोलो बोलो क्या बात है। So Nehru was sitting and he had a telephone next to him and he started talking to him. So my brother talked about the problem he had. कहा, अच्छा बेटा ज़रा फिक्र नहीं करो, देर हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, मिल जाएगी बस, तुम ऐसा करो आधा पौना घंटा इंतज़ार करो, तब तक अगर वो नहीं आए तो कहाँ भी रहो, कहाँ से कॉल कर रहे हो। उसने कहा इंडिया गेट के पास आए। कहते कोई नहीं, 3-4 किलोमीटर ही है, वहाँ से साइकिल चला के आ जाना मेरे घर, और वहाँ पे मैं दरवाजे में कह दूंगा तुम्हें अंदर आने दे, तो फिर बात करना, मैं किसी को साथ भेज दूंगा तुम्हारे, ताकि पता कर ले। No, this was fantastic thing he did at that time. You can't hear of this thing happening now. ये आज़ादी के शुरू के ज़माने में आज़ादी की बड़ी सारी झलकियाँ दिखती थी इस तरह की। I happened to come back and my brother hasn't been able to overcome the fantastic joy he had of conversing with Jawaharlal to get me to पता करके, तो अभी तक बड़ी शान मारता है उसकी। अगर ज़रा बड़ा होता ना, 2-3 साल बड़ा, तो he wouldn't have had the courage to call the prime minister रात के 2 बजे। पर छोटा था तो उसने कहा है आज़ादी है, उसी को मालूम होगा और किसको मालूम होगा, तो पता करता हूँ। And he called him and I think it was wonderful that he did, and I was pleased both by his talk and Nehru's remembrance.
एक और चीज यहाँ वाले लोगों को शायद याद होगी, आपके यहाँ ये हुआ कि नहीं, वो जमाना था जब बहुत सारे रेफ्यूजीज आया करते थे, सड़कों पे चल के इधर से कारवां आ रहा है, उधर से कारवां जा रहा है. That was the time in 47. I started working in a refugee camp, the Kingsway camp near Delhi, and we had a wonderful director. वो गदर पार्टी के हुआ करते थे. He was the director of the Kingsway camp. Some brilliant people, the best of singers, the artists and writers and all kinds of people who are worried, collected in such places कि क्या कर सकते हैं हम. अमृता प्रीतम, ऐसे लोग बहुत सारे थे. Anyway, during that time I was in the camp, and early morning nurses from the holiday camp, from the hospital opposite to the camp, infectious diseases hospital, they came early morning, मुंह उनका सफेद हुआ आके आई सामने मेरे, कहते मेरे क्या हो गया बेटी, क्या हो गया, क्या बेटी छोड़िए, हमारे यहाँ बड़े हमला हुआ है और बहुत लोगों को मार दिया है सर्वेंट्स क्वार्टर्स में, कई बूढ़े कई बच्चे कई वो. तो मुझे बहुत बुरा लगा. मैं गया पता करने के लिए, मैं देखा, मैंने saw horrible situation where killed children and killed women and killed men, and you couldn't think of it. I couldn't do anything except tell people के एडमिनिस्ट्रेशन को बता दो, पुलिस को बता दो, और करके मैं फिर अपना काम करने आके बैठ गया रेफ्यूजी कैंप में. तो इधर से एक गाड़ी आती है, खड़ी होती है वहाँ पे, नो पुलिस नथिंग, जस्ट एक गाड़ी खड़ी हुई और उसमें खुलती है और कौन निकलता है, जवाहरलाल निकलता है, विदाउट एनी सिक्योरिटी, विदाउट एनीबडी एल्स. ही कम्स आउट एंड ही सेज, किसने किया है, आपके यहाँ से किया होगा, रेफ्यूजी से किया होगा, गड़बड़ी हुई है, आई एम गोइंग टू ब्लो दिस कैंप इनटू स्मिथरीन्स. यार कोई प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बात करता है? But he was a man in pain. वो उस करके बैठ गए, लोग इकट्ठे हो गए, फिर बात करने लगे, अरे यार क्या कर रहे हो, इस आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, ऐसी आज़ादी बना दी है, तो हमने क्यों आज़ादी के लिए कोशिशें की, इस तरह का मुल्क बनाना है, तुम करोगे वो भी करेंगे, तो और करेंगे, तुम और करोगे, क्या बनेगा मुल्क का. You could see this man really hurting and paining all over. तो समझ लिया मैं क्या करूं. आप कह सकते हैं अरे उसके हाथ में ताकत थी, फौज लगा देता, ये करता, और आदमी मारता, थोड़े मारे होंगे, क्या किया. I saw him really in tremendous pain, and people became quiet. It was very difficult to manage the people in a refugee camp, and बैठ के बात करने लगे आराम से. फिर एक नौजवान खड़ा हुआ, कहते बस देखिए हमारे कितने मार रहे हैं, हमारे कितने मार रहे हैं, आजकल भी रोज खबर आती है, आते हुए मर जाते हैं, काट देते हैं, ये करते हैं, हम क्या करें. He got up and went to him, he held him with his head, शेक किया उसके कर, क्या करें, सोच नहीं सकते हो, तुम यहाँ 2 मारोगे, वहां 4 मारेंगे. मारने चाहिए उनको अगर तुम 2 मारोगे, अगर मारना बंद नहीं करोगे तो क्या निकलेगा, क्या आज़ादी, क्या ये बंद हो जाएगा, क्या और कोई तरीका है. I mean, it is amazing kind of conversation he had with him, and then again he sat down quietly with this young man, and they talked, and he talked, and this quite an experience. You didn't know what to do. क्या करें, कितना पागलपन छा गया था. I think going through this experience of a very effective human being in tremendous pain, trying to do something which he couldn't. And I think this was true of many leaders at that time, in meaningful leaders in the countries. तो वहाँ कहने लगे
शायद हमने आबादी के लिए जल्दी बातें शुरू करनी थी, शायद हम तैयार ही नहीं है इसके लिए। इस तरह के मार काट करना है, हम तैयार ही नहीं है। आजादी के लिए कब तैयार हो गए मुझे नहीं मालूम, शायद वो भी तैयार नहीं है, हम भी तैयार नहीं है। फैसला करें हम बाद में होंगे, फिर बात करें। यू नो, दिस इज द काइंड ऑफ टॉक, फैंटास्टिक टॉक। He used to visit laboratories very often, which he helped to set up. He came to many laboratories where I worked, National Physical Laboratory, many laboratories, the polonium plant of atomic energy, very places. And he made easy friends with people with scientific background, जिनकी चिट्ठी यही लिखते थे, भाई कहते थे एक दूसरे को, मेरे भाई, दोस्त, होमी बाबा, हुसैन, जहीर, etc. several people. और साफ था, वो कहने की जरूरत नहीं थी। You don't need to know quantum mechanics and electromagnetic theory to have a scientific temper. Scientific temper is a different thing. आसानी से समझें, मुश्किलें करें, सोच के करें, ये क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। एंड ही केप्ट ऑन डूइंग। बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए, बहुत सी रीजनल रिसर्च लेबोरेटरीज बनाई, एग्रीकल्चर बनाई। हम हमेशा कहते रहे कि नहीं, एग्रीकल्चर को इतनी जल्दी, थोड़ी देर कर दी तेजी करने में, कुछ कर दी वगैरह वगैरह, बहुत बात। फिर आखिरी में आपको बताना चाहता हूँ, साल गुजरते गए, मैं 19-20 साल का था जब मिले थे। मैं हर वक्त उनके साथ नहीं था, मिलना इधर उधर होता रहा। फाइनली I ended up when I was 34-35 years old in our national laboratory at a high altitude station, Uta Kaman. I was working in cosmic rays, in astronomy. And I heard that Pandit Nehru is coming for a holiday to spend a few days in the governor's house located on top of the Ooty laboratory, along with the chief minister of Tamil Nadu, Kamraj. तो मेरे मन में आया कि यार उसको बुलाएं जरा, देखें कि क्या कर रहे हैं, देखें क्या कर रहे हैं, अच्छा रहेगा। I went and talked to Homi Baba, who was my director of the Tata Institute of Fundamental Research. मैंने कहा बाबा साहब आप उनको साथ लेके आएंगे? होमी बाबा was in Bombay. कहता है यशपाल देख यार इतना वक्त नहीं है, तू ऐसे कर, तू हाथ से चिट्ठी लिख दे छोटी सी उनको कि देखिए आप यहाँ क्या कर रहे हो, कैसा काम कर रहे हो, अगर अच्छा लगता है तो लगेगा तुम्हें तो आप आ जाइए यहाँ, we love to talk to you and show you what we are trying to do. I wrote a letter to him, and I was working there along with several people. We were in a very large room of the laboratory, and and I received a message back कि जवाहरलाल जी आ रहे हैं। He along with the chief minister कामराज क्या था, कामराज के साथ चलते हुए आ रहे हैं। देखा about 200 meters walk down, दोनों अकेले चल के सड़क पे आ रहे हैं, no policeman, no guard, no nothing। चलते चलते यहाँ वहाँ पहुँचे। यही है ना यार तुम्हारा? मैंने कहा हाँ आइए आइए। So he came to the lab and we welcomed him. हमने कोई चाय नहीं पिलाई, हमने कोई कैमरे वाला नहीं बुलाया, कोई मैसेज किसी को कोई नहीं किया। हमने कहा हमने जवाहरलाल से बात करनी है और उसको देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, और यहाँ अगर तमाशा शुरू कर देंगे ना उसके लिए अच्छा है ना हमारे लिए अच्छा है। आई डोंट थिंक ही लाइक्स इट एंड ही लव्ड इट। क्या कर रहा, क्या हो रहा, क्या हो रहा, बैठ गए। तो हमारा वहाँ वी आर ऑपरेटिंग ए क्लाउड चैम्बर। मैं अब क्लाउड चैम्बर आपको समझा नहीं सकता हूँ आसानी से। मेरे पास एक तस्वीर है,
दूर से बड़ी अच्छी नहीं दिखेगी, you can move it around. It is one of the most beneficial cosmic ray and chamber invented. What it is that you have very large, depending on your use, a chamber of thick glass plates all around, except at the back, where it has a piston which can move, expand the volume of inside. और उसमें हवा, moist हवा होती है खाली, थोड़ा. Now this cloud chamber has moisture inside, a little bit of थोड़ा सा पेट्रोल वो डाल देते हैं, अल्कोहल जरा सा, कोई नहीं. The main point is that when a charged particle passes through a chamber, any place, then it produces ions, right? It ionizes the air. It produces ions, which means it separates electrons and nuclei from each other. And when it is there for a short time and there is moisture, then you simultaneously also open the back suddenly and to cool that through expansion. All this happens through electronics which has been prepared by you. तो उल्टा प्रो करके आवाज आती है, बिल्कुल बस जैसे बड़ा भारी बस हो रहा है. वो ठंडा होता है, ठंड की वजह से उसमें मॉइस्चर जमा हो जाता है. साइमल्टेनियसली वेरी शार्प टंगस्टन लाइट शाइन्स ऑन इट, और कैमरे पड़े होते हैं इधर उधर जहाँ रखे होते हैं, वहाँ रिकॉर्ड हो जाता है ऑफ दिस आयन ट्रेल विच इज ऑन विच इज जिस पे जम जाते हैं पानी के ड्रॉपलेट्स, एंड दोज आर द पाथ्स created by ionized particles, and these particles are the cosmic ray particles. Now हमारा पर्पस था क्लाउड चैम्बर ऑपरेट करने का. We were on the top of the mountain. We were looking for cosmic rays coming from outside. Cosmic rays come easier when you are at a high altitude, not so easy either. But cosmic ray particles come, and heavy cosmic resonance, and they have to interact with something, and in that interaction produce something else. You try to find out what those particles are, or what happens, and later where they come from, why they come, and they are traveling for millions of years before they get to us. आसान बात नहीं है. तो मैंने कहा पंडित जी आपको दिखाएं, एक ऑपरेशन करके दिखाएं, श्योर होगा जरा. कहा हाँ दिखाइए, मैं किस लिए आया, किस लिए हूँ. सो वी वेर ऑपरेटिंग ए चैम्बर. मेरे दोस्तों ने काफ़ी काम तैयार किया है, इधर उधर बिजली बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स लगा हुआ है. वो करके हमने एक एक्सपेंशन की, ब्रो करके डर लगता था ना, एक प्राइम मिनिस्टर बैठा आपके और बम उड़ा हुआ है बिल्कुल. वो मैंने कहा ध्यान से देखिएगा. देखा देखा देखा, हाँ कुछ तो दिखा यार, कुछ तो दिखा, कुछ एक बात फिर करोगे. मैंने कहा वो कॉस्मिक रे पार्टिकल डजंट कम एज यू ऑर्डर, थोड़ा रुकना पड़ता है. वो कोशिश करेंगे अरे करने के लिए, फिर हो जाएगा कुछ मिनट में. और फिर किया 5-6 मिनट के बाद, देयर वाज एन एक्सपेंशन एंड देयर वाज एन इमेज टेकन. बड़े खुशी है, अच्छा देखा, बहुत अच्छा देखा. फिर कहते अच्छा ये ट्रैक जो बनते हैं कहाँ पे बनते हैं. मैंने कहा बनते ये है कि आयनाइज होते हैं और आयन्स के ऊपर मॉइस्चर कंडेंस होता है. जब ठंडा करते हैं तो मॉइस्चर की फोटो लेते हैं. तो ऐसे लोग कह रहे हो कि हम कॉस्मिक रेज की फोटो ले रहे हैं, झूठ बोल रहे हो तुम तो. पानी के ड्रॉपलेट्स की फोटो ले रहे हो, विच इज कंडेंसिंग ऑन दैट. मजाक करके उन्होंने बात की. आई थिंक ही अंडरस्टूड एंड ही एंजॉयड इट एंड ही डिड दैट. नाउ व्हाट आई एम डिलाइटेड विद इज that was about the end of our working period at the lab, and that we finished and we were about to leave. तो ये जिस वक्त हुआ उसी वक्त he had done some expansions. और मैं आपको यहाँ दिखाने के लिए आया हूँ. वो समय वो था
what was the expansion which Jawaharlal Nehru saw? What he saw? What are the pictures taken? Now you'll say, नहीं तुमने बाद में बनाई होगी. बाद में नहीं बनती यार. This was the paper which was published by us in a foreign journal with all these things which we had been working on for a while, and the paper is published and the pictures are published and the dates are there. सच्चा है यार, बिल्कुल सच्चा है कि जवाहरलाल ने ये देखा था, 2 बार देखा था, उसको दिखाया है. ये मुझे लगता है, मुझे कोई दिखाए तो बहुत उम्दा लगता है. अब भी लगेगा. बड़े कमाल की फोटो है कि here is a particle which probably is traveling for 5, 6, 8, 10 million years through space and moves and moves and moves, और हिंदुस्तान के ऊपर आता है और एक ऊंचाई पे एक चैम्बर हमारा देखता है, वहाँ घुसता है, वहाँ एक कार्बन प्लेट है, उसके साथ टक्कर खाता है और उसके चीज़ें निकलते हैं, हम उसकी फ़ोटो ले लेते हैं. अरे यार, इससे ज़्यादा रोमांटिक चीज़ क्या होती है? साइंस भी है, रोमांस भी है, ब्यूटी भी है, that you are learning whole lot of things and you learn a great amount about this universe where you live, जहाँ रहते हो, क्यों रहते हो, क्या करते हो, बहुत सारी चीज़ें इसमें छिपी हुई हैं. अरे ज़्यादा लोग अगर ऐसी इन चीज़ों को ध्यान दें तो जितना अध्यात्म इससे है, असली अध्यात्म, the great spiritual thing common to all of us, connected with this planet, I think it will be much better off. We don't do it. Jawaharlal had a mind of the kind where he delighted in this, and he gave chance to people to delight in such things. Thank you very much, all of you.